everyone, welcome to Learniverse. So in this video we'll be discussing the post-fertilization event of the first chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. We have already covered the process of megasporogenesis, microsporogenesis, pollination, artificial hybridization, pollen-pistil interaction, double fertilization, etc. So now we'll be moving ahead to the post-fertilization structure and events topic. The links to the previous videos in which we have discussed all the previous topics, I'll be providing it in the description box. You can go through that and check it. So there I have covered everything in detail. That will include all your boards, question, NEET, and other competitive exams important points. I have underlined it as well. So you can have a look at those videos and come back to this video, right? So we'll be studying post-fertilization structure and events. So let me give you a basic overview कि अभी हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे. We'll be discussing about the endosperm, then second we'll be discussing about the embryo, then we'll be moving to seed and apomixis, polyembryony and hybrid also. ठीक है? So let's not take your time and let's start with the basic what is post-fertilization structure and events. So after double fertilization, endosperm and embryo development takes place. So post double fertilization, endosperm development and embryo development takes place, following which the ovules get matured into seeds and ovary gets developed into fruit, and these are together known as the post-fertilization event. So endosperm development, embryo development, seed development and fruit development are the post-fertilization events. Post-fertilization मतलब fertilization के बाद होने वाले जो भी events है after fertilization. Okay. So first is endosperm development. अब आप खुद सोचिए endosperm का basic काम क्या है? It is providing nutrition to the growing embryo. तो टेक्निकली एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होगा वो एम्ब्रियो से पहले होना चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को, और वो न्यूट्रिशन तब प्रोवाइड कर पाएगा जब वो खुद फुली डेवलप्ड होगा. तो वो पहले डेवलप होगा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. सो आवर फर्स्ट लाइन इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक है. In most common type of endosperm development, the pen is primary endosperm nucleus. जो आपका एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल से फ्यूज करता था, तो it forms primary endosperm nucleus, and this primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division and it give rise to free nuclei. ठीक है. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे जिससे फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म होगा. And this stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. जो आपका कोकोनट वाटर होता है, that is free nuclear endosperm. उसमें that is why it's highly nutritious, क्योंकि उसमें फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दैट इज बेसिकली एंडोस्पर्म. तो जैसे जैसे आपका कोकोनट डेवलप होता जाएगा, वो जो उसका एंडोस्पर्म है वो यूज अप होता जाएगा. तो आप देखोगे कि जो मेच्योर कोकोनट्स होते हैं उसमें कोकोनट वाटर की क्वांटिटी लेस होती है या नहीं होती है. जैसे जैसे उसकी जो आप कहते हो ना कोकोनट की मलाई जो होती है वो फॉर्म होती है ना जैसे जैसे, तो आपके उसमें पानी कम होता जाता है. सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिविजन ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है. जैसे जैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे जैसे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में, तो जो न्यूक्लियाई बन रहे हैं उनके सेल वॉल बनते जाएंगे एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर. सो देन इट मे बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड. या तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म को पूरी तरह से यूज कर लेगा, जैसे पीज में होता है, ग्राउंडनट में होता है, बीन्स में होता है, या फिर वो उसमें परसिस्ट करता है मैच्योर सीड में जैसे कैस्टर और कोकोनट में, और सीड जर्मिनेशन के दौरान वो यूज अप हो जाता है. या तो वो डेवलपमेंट के, देखो दो ऑप्शंस है, या तो वो डेवलपमेंट के टाइम पे ही यूज अप हो जाएगा, दैट इज पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स, तब तक हमारी सीड जो है वो मैच्योर नहीं हुई है. या एक ऑप्शन ये है. सेकेंड ऑप्शन है कि जब हमारी सीड मैच्योर हो गई है तब तक आपके पास एंडोस्पर्म बचा हुआ है. जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है अब वो सीड जर्मिनेशन में यूज होगा.
तो ये आपका बेसिक एंडोस्पर्म के बारे में है। इसमें आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ सकते हो सारी की। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रेपिडेटली एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ट्रिप्लॉइड कैसे होता है वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ही था। एक मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई, तो 3 गैमीट्स हो जाते हैं, इस वजह से वो ट्रिप्लॉइड होता है। और फिर हाउ, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स, 3 न्यूक्लियाई फॉर्म होता है। और उसके बाद आपको कोकोनट का एग्जाम्पल भी दे दिया, वो आप याद कर लेना कि कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो और जो उसका मैंने आपको बताया था ना कोकोनट की मलाई वाला पार्ट, इट इज नोन एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, वो भी आप याद कर लीजिएगा। देन एंडोस्पर्म में भी कम्प्लीटली यूज्ड अप वाला भी मैंने आपका कवर कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू एम्ब्रियो। नाउ एम्ब्रियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डाइकोट एम्ब्रियो एंड द मोनोकॉट एम्ब्रियो। नाउ एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। ये आपको याद होगा कि कैसे माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जो आपकी पॉलन ट्यूब है वो एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, फिर फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू वो आपको वहां पे पॉलन ग्रेन को गाइड करता है फिलीफॉर्म एपरेटस, और वो सिनर्जिड्स में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके सिनर्जिड्स में जो मेल गैमीट रिलीज हुआ है वो एक्स सेल से फ्यूज करके क्या बनाता है, जायगोट। ठीक है, सो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड के पास होता है। अब आपका जो जाइगोट है वो आपका प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगा, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एंड एट लास्ट मैच्योर एम्ब्रियो। ये ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पुरानी वाली इस वाली एनसीईआरटी में भी आई गेस इसका डायग्राम था, आप देखोगे ना जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक होगा, आई गेस मैंने डायग्राम इसमें आगे डाला होगा, बट अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक है, उसके नीचे आपका ये वाला डायग्राम होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले आपका ये वाला ऐसा होगा, इसके अंदर एक ही जायगोट होगा। ठीक है, नाउ दिस जायगोट अंडरगोस डिवीजन, तो ये बनेगा आपका, यहाँ से ऐसे डिवाइड होगा और ये दो बन जाएंगे, एक दो, दोनों सेम साइज के होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, देन आपका बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, यहाँ पे ऐसा होगा, उसके बाद नीचे से ऐसा करके ऐसा टाइप का होगा थोड़ा। ये मेरा एक्यूरेट नहीं बन पा रहे हैं अभी, तो आप बुक में एक बार देख सकते हो। यहाँ पे ऐसे डिविजन्स टाइप के होंगे, इसके अंदर यहाँ पे हर एक उसमें डिवीजन होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका बड़ा सा होगा अंदर, एंड यहाँ पे आपके वेब टाइप का नेटवर्क बनता है इसमें पूरा। दिस इज योर ग्लोबुलर एम्ब्रियो। नाउ ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद आपका बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। उसमें ऐसे ऊपर का पार्ट छोटा होता है, ये लंबा होता है, उसके नीचे से ऐसा हार्ट शेप का आता है। ठीक है, फिर आपका बनता है मैच्योर एम्ब्रियो, जिसका डायग्राम आगे है आपके, उसमें मैं आपको दिखा दूंगी। ऐसा करके कुछ होता है, वो मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो आप ना, एक हमारा प्रैक्टिकल होता है, 12th में नहीं होता है, बट जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको क्यूकम्बर के अंदर से, या फिर आपको कोई सैंपल दिया होगा, उसको आपको बीच से ना, मतलब उसके सीड्स निकाल के, उसका एम्ब्रियो निकाल के छोटा सा, उसमें आपको एक निडल की मदद से ना धीरे धीरे करके अंदर से एम्ब्रियो स्लाइड में निकालना होता है। तो उसमें आपका ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो या हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आ जाता है। और एम्ब्रियो को ना आप बड़ी क्लासेस में इसके और भी डिविजन्स पढ़ोगे, तो उसमें आपके ना जो एक और डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं टॉर्पीडो। ठीक है, टॉर्पीडो स्टेज में वो आपका दिख जाता है, तो उसमें प्रॉपर ऐसे ही अंदर तक डाइसेक्शन टाइप का दिखता है ऐसे करके, कि अब मतलब वो ऐसे अलग हो ही जाएगा करके, टू कॉटिलिडन्स बन ही जाएंगे। बट मोस्टली आपका हार्ट शेप्ड भी दिखता है। टॉर्पीडो सबसे ज्यादा कॉमन है, हार्ट शेप्ड आपको दिखाना होगा तो आप उसको ना थोड़ा यंग सीड्स को देखना पड़ता है, उसके अंदर होता है आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, देन आपका ये एम्ब्रियो वाला पार्ट हो गया। अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एंड इट हैज टू cotyledons, that's why dicot. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is called epicotyle, and it terminates into plumule or stem tip. ये तो आप बेसिक है, तो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो। And the portion below the level of cotyledons is called hypocotyle,
and it terminates to radicle or the root tip, and root tip is covered with a root cap to provide protection. ठीक है. So आपके टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, टू कॉटिलिडन्स होते हैं. जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके ऊपर वाला पार्ट आपका एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट आपका हाइपोकोटाइल. ठीक है. नाउ वी हैव मोनोकॉट एम्ब्रियो. Embryos of monocot possess only one cotyledon. So monocotyledon, grass family का जो embryo होता है, ठीक है. The cotyledon is called scutellum. जो grass family का embryo होता है उसका cotyledon is known as scutellum and is present towards one side, that is lateral of the embryonal axis. बीच में present नहीं होगा, एक side पे present होता है आपका. इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जिसमें ग्रास फैमिली का आपको स्क्यूटेलम दिख जाएगा. ठीक है. Then lower end में embryonal axis has radicle and root cap enclosed in an artificial undifferentiated sheath called coleorhiza. R से radicle, R से root, R से coleorhiza. ठीक है. And the portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle, or epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure called the coleoptile. P से plumule and P से coleoptile. ठीक है. मोनोकॉट एम्ब्रियो में आपको बस इतना याद कर लेना है, इसको अच्छे ढंग से याद करके इसका डायग्राम याद कर लेना. डायग्राम आगे है. सी. सो ये है आपका डाइकॉट एम्ब्रियो. ये हो गया आपका प्लेम्यूल. These are your cotyledons. This is your hypocotyl. Here is your radicle and root cap. ठीक है. And this is your grass family का जो मैं आपको डायग्राम बता रही थी. देखो स्क्यूटेलम है ना एक cotyledon, और लेटरल साइड में प्रेजेंट है, बीच में नहीं है, लेटरल साइड पे है. Now the shoot tip is known as coleoptile and the root tip is known as coleorhiza. ठीक है. So ये डायग्राम आता है. This diagram is important. इसको आप अच्छे से याद कर लो और अच्छे से डायग्राम बना के आना एग्जाम में अगर आएगा तो. नेक्स्ट वी हैव सीड. सो अ सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, cotyledon and embryo axis. ठीक है. नाउ mature seeds can be either non-albuminous or ex-albuminous, or it may have the endosperm. ठीक है. So the residual persistent nucellus is the perisperm. Perisperm is present in few of the fruits. This is basically जिसमें आपका देखो नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस एक ही चीज होती है. नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस एक चीज होती है, एंड सेकेंड इज एल्ब्यूमिनस. ठीक है. सो जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं दे हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म. मतलब जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली यूज अप हो गया, जैसे हमने पहले पढ़ा था पी में. तो और जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होती हैं दे रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एंड इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ये हमने पढ़ा है वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा में. ठीक है. बट अब कुछ सीड्स ऐसी होती हैं कि जिसमें न्यूसेलस परसिस्टेंट रहता है, मतलब न्यूसेलस बचा हुआ रहता है, एंड इट इज नोन एज पेरिस्पर्म. एंड इसके एग्जांपल्स होते हैं आपके ब्लैक पेपर एंड बीट. सो उसमें जो होता है ना, इसमें तो आपके एंडोस्पर्म प्रेजेंट नॉन प्रेजेंट दिखा रहा है, बट जो पेरिस्पर्म होता है इसमें आपका न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, पार्ट्स ऑफ न्यूसेलस इज प्रेजेंट. ठीक है. नाउ जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो आपके प्रोटेक्टिव सीड कोट्स बनाते हैं, एंड द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट. जो माइक्रोपाइल होता है ना, एक पोर आपको दिखेगा, इट इज नोन एज माइक्रोपाइल एंड इज प्रेजेंट इन द सीड. आपको सीड्स में दिख जाता है माइक्रोपाइल. ठीक है. इससे जो होता है आपकी ऑक्सीजन और वाटर एंटर करती है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, क्योंकि आपका सीड जो है उसमें तो बहुत कम वाटर होता है ना, वो डोर्मेंसी में रहता है अधिकतर सीड्स जब तक उसको जर्मिनेट ना करो. तो जब वो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के लिए उसको ऑक्सीजन और वाटर चाहिए होती है, तो वो आपकी माइक्रोपाइल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है. नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली. अलग अलग प्रोसेस नहीं है, एक साथ कैरी ऑन होता है. ओव्यूल सीड्स में बदलता है, ओवरी फ्रूट में बदलती है. वॉल्स ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प. जो ओवरी की वॉल है इट डेवलप्स टू द वॉल ऑफ फ्रूट एंड इज नोन एज द पेरिकार्प. और कुछ स्पीशीज में थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन. तो देखो किसी में आपका, अब आपके जो फ्रूट्स होते हैं ना, इसके टाइप्स होते हैं. अब इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि जो वॉल होती है ओवरी की वो फ्रूट की वॉल में बदलती है और उसको हम पेरिकार्प कहते हैं.
तो अब फ्रूट्स जो होते हैं वो आपके फ्लैशी भी हो सकते हैं, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा हो गए। ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट या मस्टर्ड हो गए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो फ्रूट्स होते हैं जो पूरा का पूरा ओवरी से बनते हैं और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, तो वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। बट जो कुछ फ्रूट्स है, कुछ स्पीशीज में थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन. So these fruits are known as false fruits. First is your true fruit, second is your false fruits. So जो true fruits होता है उसमें पूरा का पूरा ओवरी से फ्रूट बनता है, बट अगर थैलेमस इन्वॉल्व हो गया है तो इट इज नोन एज द फॉल्स फ्रूट. ये दिखा है ट्रू फ्रूट्स डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। तो अब आपके फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? एप्पल होता है और स्ट्रॉबेरी होता है, उसमें थैलेमस भी प्रेजेंट होता है. सो दे आर योर फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। और आपके थर्ड टाइप के फ्रूट्स होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. दीज आर द फ्रूट्स दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है और मैं भी बता देती हूँ. बनाना, सीडलेस फ्रूट्स बनाने की एप्लीकेशन होती है पार्थिनोकार्पी की, उससे सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं. तो बनाना जो है वो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है. पार्थिनोकार्पिक इज डेवलपमेंट व्हेन अ फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, सीधे फ्रूट बन रहा है, दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. एन एग्जांपल इज बनाना. नाउ सीड्स का एडवांटेजेस. सीड के बहुत एडवांटेजेस होते हैं, लिटरली सीड इज वेरी एडवांटेजेस टू द प्लांट. सीड से देखो, पहले तो प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है सीड से, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो आपका ये पॉलिनेशन है और फर्टिलाइजेशन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर. बट सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल टू वाटर, बिकॉज जब आपका सीड फॉर्मेशन होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था माइक्रोपाइल के थ्रू आपका ऑक्सीजन और वाटर जाता है. तो सीड फॉर्मेशन के लिए आपको वाटर की जरूरत होती है. Now seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habits. अब आपको एक प्लांट दूसरी जगह पे पहुंचाना है, तो आपके लिए feasible ऑप्शन क्या होगा कि आप पूरा का पूरा प्लांट उठा के ले जाओगे या सीड को प्लांट कर दोगे. सीड को प्लांट करना इज कंपैरेटिवली इजियर. सीड छोटी होती है, ले जाई जा सकती है आराम से. पूरा का पूरा पेड़ उठा के तो हम नहीं ले जा सकते ना. एंड सीड जो है वो डिस्पोज खुद भी होती है. सीड डिस्पोजल मैकेनिज्म्स पढ़े हैं आपने. सीड डिस्पोज एनिमल्स के थ्रू हो जाती है, बर्ड्स के थ्रू हो जाती है. बर्ड्स कितनी सीड्स डिस्पर्स कर लेती है. सो इट इज कंपैरेटिवली इजियर. अब पूरा का पूरा प्लांट उठा के डिस्पोज करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो सीड्स हैव बेटर अडैप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पोजल टू न्यू हैबिटेट्स. यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड एज दे हैव फूड रिजर्व. तो उसके पास, यंग सीडलिंग्स के पास एंडोस्पर्म होता है जो फूड रिजर्व का काम करता है. They are the products of sexual reproduction, thus they generate new genetic combination leading to variation. And most important, seed is the basis of our agriculture. हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर में? पौधे तोड़ना, पौधे कम उगाते हैं पौधे भी उगाते हैं, कटिंग्स लगाते हैं फ्लावर्स की. बट सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. जो आपके फ्रूट्स है, नहीं सॉरी वेजिटेबल्स है, वो अधिकतर सीड से लगाई जाती है, इसलिए सीड्स इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर. आप देखोगे कोई भी खेत है, वहां पे एक बड़ा सा, मतलब जैसे मान लो आपने मस्टर्ड उगा रखी है, एक प्लांट आप छोड़ते हो ना जिसमें मस्टर्ड के सीड्स, जो वो प्लांट डेवलप होगा फिर उसमें मस्टर्ड के सीड्स आते हैं ताकि वो सीड्स हम अगले टाइम यूज कर सके. सो सीड्स इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर. सी, अब देखो आपके डायग्राम्स आ गए. नाउ दिस इज योर कॉटिलिडन्स. तो कॉटिलिडन से तो आपको दिख रहा है. दिस इज योर माइक्रोपाइल जिसके थ्रू वाटर एंड ऑक्सीजन जाती है. This is your seed coat, endosperm, cotyledons, hypocotyle axis, shoot apical meristem जहाँ से shoot form होती है, root tip. Now जो आपका ये seeds, एक और seed है देखो, इसमें seed coat है, endosperm यहाँ पे बचा हुआ है. इसमें देखो पूरे कोने कोने में endosperm है, इसमें बस इतना सा है. This is a shoot apical meristem, this is your root axis, and this is your maize का जो seed है, pericarp है, endosperm है, scutellum है, coleoptile, plumule, radicle and coleorhiza. This is your false fruit, apple and strawberry. ये thalamus है देखो, thalamus present है. So these are your false fruit, and true fruits are the fruits that develop only from ovary. इसमें भी thalamus present है. Now, did you know that oldest is that of lupine, the oldest seed? ठीक है. Lupinus arcticus. It was excavated from Arctic tundra.
The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. 10,000 साल तक वो सीड डोमेंट रहा, उसके बाद वो जर्मिनेट किया. A recent record of 2,000 years old viable seed is that of date palm Phoenix dictylifera. So 2000 साल पुराना एक और सीड है हमारे पास, डेट palm, that is Phoenix dictylifera, and it was discovered at King Herod's place near Dead Sea. तो ये एक आपका डिड यू नो टाइप का है, इसके नाम आप याद कर लीजिए, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. बाकी now we'll be moving to apomixis and polyembryony. एस्टेरेसी फैमिली में जो एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बगैर एक और बार सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है, इट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, बट ये एपोमिक्टिक सीड्स है. Now, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. So, जो ये वाला apomixis है ना, ये asexual reproduction है, but it mimics वो sexual reproduction को copy करता है. और इसके बहुत सारे वेज होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स. जो डिप्लॉयड एक्सेल होता है ना, उसमें रिडक्टिव डिवीजन नहीं होगा, सीधे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा डिप्लॉयड एक्सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन. एंड दिस इज वन वे ऑफ एपोमिक्सिस डेवलपमेंट. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पॉलीएम्ब्रियोनी. कभी कभी जो सिट्रस और मैंगो की वेराइटीज है ना, उसमें क्या होता है, जो न्यूसेलर सेल्स है वो जो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ होते हैं ना, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर जाते हैं, और उससे बहुत सारे एम्ब्रियोज फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. So, occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. मैं कोशिश करूंगी कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के एक और सेपरेट वीडियो बना दूं, जिसमें आपको एपोमिक्सिस पूरा डिटेल में उसके टाइप्स और पॉलीएम्ब्रियोनी और पार्थिनोकार्पी भी पूरा कवर हो जाएगा. बट आप फॉर द टाइम बीइंग इसको शॉर्ट में कवर कर सकते हो, और जब भी वो वीडियो आएगी आई विल बी पोस्टिंग उसका भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसको भी देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एपोमिक्सिस वर्सेस हाइब्रिड. सो पहले से हम हाइब्रिड सीड्स यूज करते थे. सो उसके साथ जो प्रॉब्लम होती है ना, इट नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर. जो हाइब्रिड सीड्स होती है ना, उनको हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है सीड्स को, क्योंकि जो उनका जो उन सीड्स से जो प्रोजेनी बनती है ना, उसमें जो प्लांट्स की जो प्रोजेनी है वो सेग्रीगेट कर जाती है और हाइब्रिड कैरेक्टर्स को मेंटेन नहीं कर सकती है. जो उसके हाइब्रिड कैरेक्टर्स होते हैं, जिसके लिए वो सीड को हम हाइब्रिडाइज करते हैं, जिसमें हम जो पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहते हैं वो उसमें डाला जाता है, वो मेंटेन नहीं हो पाती है हाइब्रिड सीड्स के थ्रू. इसीलिए उनको हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है, और उसको हर साल प्रोड्यूस करना इज कॉस्टली. सो अगर हम इन हाइब्रिड्स को एपोमिक्स में चेंज कर देंगे, तो उससे जो कैरेक्टर्स हैं सेग्रीगेट नहीं होंगे, तो जो फार्मर्स हैं वो हाइब्रिड सीड्स को हर साल यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली. सो इस वजह से हम एपोमिक्सिस की हाइब्रिड की जगह एपोमिक्टिक सीड्स को प्रेफर करते हैं. ठीक है, कर रहे हैं आज के उसमें. अब इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री. एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन, तो उसमें अभी रिसर्च चल रही है, एंड आने वाले टाइम पे एपोमिक्सिस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू हाइब्रिड. तो दैट इज इट फॉर द चैप्टर. लाइक इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके प्रीवियस जो वीडियोस हैं आई विल पोस्टिंग देयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपने नहीं देखे तो आप वो देख लेना. And this chapter is really important. This whole unit is very important for your board exams, बाकी for NEET as well. So हमने पूरा चैप्टर पूरा कर दिया. इस वाली वीडियो में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड एपोमिक्सिस वगैरह पूरा कवर कर दिया है. तो दैट्स इट. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. Also, don't forget to subscribe the channel for more such interesting videos. Thank you. Bye bye.